Assalamu alaikum my dear students. Hope you all are fine. Welcome in online biology class. Last lecture we have started with a new topic and the topic was based on plants. So here in this chapter we have to see the different functions played by plant, and this is the chapter that belongs to your botany part of your textbook. So we have started the new chapter, that is plant water relation. In this chapter last time we have completed the properties of water, the structure of root, the structure of root hair. Then we have seen the different types of water that is available for roots for absorption. Then we have seen how roots are absorbing water by soil. Then we have seen the two important phenomena through which the water is getting absorbed by root, that is we have seen imbibition and we have seen diffusion, and to some extent we have seen the diffusion pressure deficit, or it is also called as DPD. Now let's move further and talk about the another different phenomena in plant water relation, that is osmosis. It is a process by which water enters into the cytoplasm of the root hair cell. Osmosis is a special type of diffusion of solvent through a semi-permeable membrane. In last lecture I have given you explanation about the semi-permeable membrane, that is plasma membrane is called as semi-permeable membrane because it is selectively giving entry to certain solvents, we can say. So the cytoplasm of a root hair cell contains minerals, sugars, etc. We know that in the vicinity, in the close vicinity of the soil, the water and mineral is present, जिसको roots को absorb करना होता है. तो वो roots को absorb करने के लिए this is the important phenomena, we can say, that is osmosis. In another word we can say the solution inside the cell is more concentrated, or we can say stronger than outside the cell, that is the weaker. Therefore solvent from a weaker solution enters into cytoplasm, that is stronger solution of cell, through a semi-permeable plasma membrane. Thus migration of solvent is called osmosis, or in another word we can say the osmosis is the movement of water from a higher concentration to a lower concentration through a semi-permeable membrane. You can see here the green line is denoting the semi-permeable membrane, and the left part is the highly concentrated area and the left one is the lower concentrated area. So we can also say that the water at the interface of cell wall and plasma membrane enters into the cytoplasm of the root hair cell. Due to this process we can say osmosis. So with respect to the concentration in osmotic migration, यहाँ पे हमको जो है वो osmosis को और डिटेल में देखना है. इन commonly और इन simple term if we will say, तो the outside solution जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वाटर प्लेंटी अमाउंट में अवेलेबल होता है, तो इस हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से जो रूट का इंटरनल एरिया है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, टोटल भी उसकी क्वांटिटी भी कम है, तो इस एरिया में वो ट्रांसफ़र हो रहा है. एंड विथ रिस्पेक्ट टू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो इट इज़ नथिंग बट द osmosis. So the movement of a water molecule from a region of higher water potential to a region of lower water potential through a partially permeable membrane is called as osmosis. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है, तो आप समझ ही चुके होंगे अभी. और इवन ये बहुत कॉमन टर्म है जो आप लोग 9th स्टैंडर्ड से अपने पढ़ते आ रहे हो. इन 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो दिस टर्म osmosis was there in your syllabus. So I hope कि आप लोगों को osmosis एक न्यू कंसेप्ट नहीं लग रहा होगा. Many things we can say in another definitions given by different scientists. So let's see one more. The osmosis is the movement of water or other solvent through a plasma membrane from a region of low solute concentration to a region of high solute concentration. So it is a passive transport, meaning it does not require energy to be applied. Directly ये जो process होता है वो without utilization of energy conduct हो जाता है. Simple यहाँ पे जो roots होती हैं वो root के जो external cells होते हैं वो cell ये function perform करते हैं. जैसे कि बाहर का जो root के outside का जो region है वहाँ पे in plenty minerals and water is available, तो वहाँ का वो region high concentrated region हो गया. तो इस region से roots को absorb करना है उनके plasma membrane से, जो कि एक semi permeable membrane है.
उस मेम्ब्रेन के थ्रू जो अंदर का रीजन है जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है फ्लूइड का, तो उस रीजन में जब ये पैसेज होगा तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस. विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक माइग्रेशन, यानी कि कैसे सोल्यूट पास होता है रूट के अंदर, तो इस बेसिस पे हियर वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन based on the how the concentration is there in outside the area. So the 3 solutions are hypertonic solution, isotonic solution एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन. तो ये जो 3 सोल्यूशन है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस में कॉन्सेंट्रेशन कम है, किस में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. तो लेट्स सी वन बाय वन दीज 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस. So the very first one that we are going to see is the hypotonic solution. So a hypotonic solution is one that has high water potential as compared to the other solution. So the solute concentration is lower outside the cell. Water molecule move into the cell and the cell will expand and may burst because of the pressure that will get exerted on the external wall. So this bursting of an animal cell caused by overstretching of the cell membrane, so that is the lysis breakdown. lysis एक ही चीज़ होती है. तो इस तरीके से जो है ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है. The next is the hypertonic solution. A hypertonic solution is one that has a lower water potential as compared to the other solution. So the solute concentration is higher outside the cell. Water molecules move out of the cell wall shrink over here, and the cell concentration is going to happen, and it happen then an animal cell loses water and it will shrink. तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट वाटर लॉस हो जाता है क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे श्रिंकेज हो जाता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन. सो दिस आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज़ द सेम वाटर पोटेंशियल, यानी कि जितना कॉन्सेंट्रेशन बाहर के मीडियम का है सेम उतना ही कॉन्सेंट्रेशन अंदर के मीडियम का भी होगा. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज सेम एज बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. सो द सेल वॉल्यूम विल नॉट चेंज. जैसा सेल का वॉल्यूम पहले था बिकॉज बिफोर ऑस्मोसिस, उसके ऑस्मोसिस के बाद भी सेल का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा. सो लाइक दैट वी आर हैविंग द 3 different types of solution in this process of osmosis. So here we can say hypotonic solution is a weak solution, or we can say strong solvent having low osmotic concentration. Hypertonic solution is a strong solution or weak solvent having high osmotic concentration, and isotonic solution having such a concentration of solute or solution where there is neither gain nor loss of water in an osmotic system. So in other words we can say concentration outside and inside the cell is same. So like that here we are having the 3 different types of solution जो एक cell bear करता है when it is going to have the absorption of nutrients and minerals from the soil. So by undergoing this process only osmosis का process जो है वो complete होता है. ये 3 तरह के solutions से deal करना पड़ता है in the process of osmosis we can say here. Now next is the type of osmosis. Here we are having 2 type of osmosis, that is endoosmosis and exoosmosis. आप नाम से ही समझ में यहाँ पे आ रहा है कि endo means inside and exo means outside. So यहाँ पे जो exoosmosis है it is the migration of solvent from the cell outside. So it cause flaccidity of the cell, it means here the cell become flaccid. and अगर हम लोग endosmosis की बात करेंगे so it is the migration of the solvent into the cell, it means it cause a turgidity, the cell become turgid, it may burst. Okay, so it cause turgidity of the cell, that is cytoplasm becomes turgid and turgidity increases the turgor pressure, जिसको TP भी कहा जाता है, turgor pressure of the cell, and this TP is the pressure exerted by turgid cell sap on the cell membrane and the cell wall. In a fully turgid cell DPD is 0, हम लोग DPD लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. Cell wall being thick and rigid exert a counter pressure on the cell sap. So this is called as wall pressure. जो wall एक counter pressure create करता है cell के ऊपर, वो pressure कहलाएगा wall pressure. In a fully turgid cell turgor pressure exactly equal होता है wall pressure से, but operating in opposite direction, यानी कि जो direction में turgor pressure आता है उसके totally opposite direction में वहाँ पे wall pressure उस पर exert होता है. तो
यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में भी देख सकते हैं. सो इट इज़ एंडोस्मोसिस इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल एंड इट इज़ आउटसाइड ऑफ द सेल. हियर वाटर मूव्स इनटू द सेल, देयर वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल. नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट एंडोस्मोसिस, सो इट अकर्स व्हेन सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन. एंड जो एक्सोस्मोसिस होता है वो उस वक्त होता है जब हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अपने सेल को रखते हैं. नाउ दिस अकर्स व्हेन द सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग इज लेस देन द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है. और यहाँ पे जो है वो टोटल उसके अपोजिट होगा, जबकि सराउंडिंग का प्रेशर जो है कॉन्सेंट्रेशन हायर होगा. और इस तरह से जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हम लोग एक्सोस्मोसिस देखेंगे. देन हियर वी कैन से वाटर पोटेंशियल ऑफ द सराउंडिंग इज हायर देन दैट ऑफ द साइटोसोल एंड हियर वाटर पोटेंशियल ऑफ द सराउंडिंग इज लेस देन द साइटोसोल. साइटोसोल मतलब का साइटोप्लाज्म का जो एरिया होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो वो रीजन साइटोसोल कहलाता है. तो हियर सेल में स्वेल इन एंडोस्मोसिस, पानी अंदर आ रहा है इसीलिए सेल स्वेल हो जाएगा. यहाँ पे पानी बाहर निकल जा रहा है तो सेल में श्रिंक. तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं. दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैपिलरी वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स एंड द रूट्स एंड एंट्रेंस ऑफ वाटर from the xylem vessel. And here we can say movement of water from the root hair cells to the cortical cells, मतलब कि जो कॉर्टेक्स होता है ऑफ द रूट. तो यहाँ पे कॉर्टेक्स के ज़रिए पानी जो है वो अंदर जाता है. तो इस तरीके से हम लोग एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस को डिफरेंस फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू सी द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ नथिंग बट द प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर मूविंग अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ड्यू टू ऑस्मोसिस. यानी कि हायर रीजन से लोअर रीजन पे जब वाटर मूव हो रहा है तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है ऑन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो दिस प्रेशर इज़ नथिंग बट द ऑस्मोटिक प्रेशर. सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली. हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली होता क्या है. सो वी कैन से दिस इज़ द प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन विच जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर. उसको रोकने की वो कोशिश करता है. ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द एक्सेस ऑफ द प्रेशर रिक्वायर्ड टू इक्वलाइज वाटर एक्टिविटी इन द टू कंपार्टमेंट्स. यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन और हायर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में उसको इक्वलाइज प्रेशर ये करने की कोशिश करता है. The term osmotic pressure is used for a solution and not for a solvent. ये solution के लिए used होती है term because solution जो है वो highly concentrated या low concentrated वाला होता है. तो इसीलिए osmotic pressure जो है वो basically solution के लिए term use होता है. All non penetrable solutes in a solution exert ऑनकोटिक प्रेशर. यानी अगर हम लोग सॉल्वेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बल्कि एक ऑनकोटिक प्रेशर करके एक टर्म होती है, वो वहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. बट अगर हम लोग बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे सो इट इज़ अ प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन सो एज टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल इनटू द सेल. वो उसको रोकने की वहाँ पे कोशिश करेगा. मोर सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू द प्रेशर विच मस्ट बी एक्सर्टेड अपॉन द प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट पास नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ये ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सर्ट किया जाता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे डीपीडी जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के. अगर हम लोग उसमें से टर्गर प्रेशर हटा दें तो वहाँ पे वो डीपीडी हमारा जो है वो बन जाएगा. तो वी कैन से दैट इन अ फ्लासिड सेल टर्गर प्रेशर इज 0, देयरफॉर डीपीडी इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक प्रेशर. एंड इन टर्जिड सेल अगर हम लोग बात करेंगे तो डीपीडी वहाँ पे 0 हो जाएगा, देयरफॉर टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की. हियर द नेक्स्ट फिनोमेना वी आर हैविंग द facilitated diffusion. Now what is this facilitated diffusion? The passive absorption of solutes when mediated by a carrier is called facilitated diffusion. Particles that are lipid soluble can easily diffuse through lipoproteinaceous cell membrane. The diffusion of hydrophilic solutes has to be facilitated because their diffusion across the membrane is difficult. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी उसके पासेज के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए फैसिलिटेट डिफ्यूजन का होना बहुत ज़रूरी है. Membrane proteins provide such sites for facilitated diffusion. These proteins are called as aqua protein. हम लोग लास्ट लेक्चर में aqua protein के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये वाटर चैनल्स होते हैं जो वाटर के पैसेज में मदद करते हैं. So these proteins are aqua protein and ion channels they are called as. So these protein helps move
substances across membranes without the expenditure of energy, कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, जबकि ईजिली यहाँ पे ये पैसेज हो जाता है. सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द मोलिक्यूल्स टू बी डिफ्यूज्ड थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. जब सब्सटेंसेस को पास करने के लिए किसी कैरियर का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इससे अगर लिपिड सॉल्यूबल है तो वहाँ पे लिपोप्रोटीन्स के थ्रू वो इजीली ट्रांसफ़र हो रहा है. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अगर पास होने हैं तो प्रोटीन चैनल्स जो कि हमारे एक्वापोरिन्स हैं उसके थ्रू वो पास हो रहा है. तो इस तरीके से जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन काम करता है. सो और वी कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल्स डाउन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ऑटोमेटिकली जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो पास हो जाते हैं. Uses membrane proteins to move molecules across the membrane that are large, or we can say they are the charged ions. तो इस तरीके से they are working as a carrier to pass on the different types of molecules by using this facilitated diffusion. Or in other word we can say that facilitated diffusion is the process that allows selective movement in and out of the cell membrane. जो भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे लिपिड्स है तो लिपोप्रोटीन्स के थ्रू उसका ट्रांसफ़र होगा, प्रोटीन्स है तो एक्वापोरिन्स के थ्रू उसका ट्रांसफ़र होगा. तो डिफरेंट कैरियर मॉलिक्यूल्स आर हियर टू पास आउट द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट हैज़ टू बी पास्ड ऑन इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो यहाँ पे जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से यहाँ पे वो कैरियर बन के वो काम करते हैं ताकि ईजी ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो सके. Now next concept we have to see here is the water potential. According to the principle of thermodynamics, every component of a system is having a definite amount of free energy which is used to do work. So here we can say osmotic movement of water is on the basis of free energy. Free energy per molecule in a chemical system is called its chemical potential. Chemical potential of water is called water potential. So it is represented by the Greek letter psi. Water potential of protoplasm is equal to both opposite in sign to dpd. It has negative value. The unit of measurement is in bars, pascals, atmosphere. Now we can say water potential of pure water is always 0 because addition of any solute in it decreases its psi value. Therefore it has negative value, we can say. Or we can say about the water potential that it is a tendency of a water to move across a membrane due to the combined forces of osmotic potential and pressure potential. So here it is a psi W, that is the water potential, is the same as osmotic in animal cell. If we will talk about plant cells, so in plant cells we have to consider the cell wall and the pressure is puts on the internal solution. So here we can say this is the psi, जो उसका साइन है वो सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे इजीली उसको डिनोट कर सकते हैं. सो एज आई सेड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, a quantitative expression of the free energy associated with water, because जो भी प्रेशर्स पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑल, इट डजंट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी. तो यहाँ पे जो है वो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज होती है. फ्री एनर्जी मीन्स अ पोटेंशियल फॉर परफॉर्मिंग वर्क फॉर द एनर्जी दैट इज़ फ्री एंड अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग द वर्क दैट इज़ गोइंग ऑन इन द सेल. Now water potential is a measure of the free energy of water per unit volume. We can say water moves down a chemical potential gradient from a region of high chemical potential to a region of low chemical potential. So here also they are following the same, that is higher to lower to higher का यहाँ पे हम लोग डाउन केमिकल पोटेंशियल से हाई केमिकल पोटेंशियल की तरफ वहाँ पे वो उसका मूवमेंट होता है. सो बेसिकली ये इट इज़ वी कैन से सपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर ऑस्मोसिस वी कैन से. सो बाय यूजिंग दिस वाटर पोटेंशियल वी मे कैलकुलेट द केमिकल एनर्जी, और इट इज़ एक्चुअली बिसाइड फॉर्मूला हम लोग इसको बोल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. बिकॉज वाटर इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल एरिया टू लो वाटर पोटेंशियल एरिया.
Difference between water potential of the adjacent cell decides movement of water through plasmodesmata across the cell। ये सेम बात हो जाती है, जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा या हायर सोर्स होता है वाटर का, वहीं से वो सोर्स जो है वो लोअर की तरफ बहना शुरू होता है। तो यहाँ पे ये वाटर की जो पोटेंशियल होती है, इट इज़ वाटर की जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल दिखाएगा, बिकॉज वो हमेशा इट हैज़ टू इट इज़ ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हाई वाटर पोटेंशियल एरिया से लो वाटर पोटेंशियल एरिया की तरफ जो वाटर है उसका पैसेज होता है। तो इसी तरीके से हम लोगों को जो है ये वाटर पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे देखना था। अबाउट द वाटर पोटेंशियल वी कैन से इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वाटर पोटेंशियल ऑफ एडजेसेंट सेल। इट विल डिसाइड द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा अक्रॉस द सेल। किस तरीके से मूवमेंट होगी ये वाटर पोटेंशियल ही डिसाइड करता है। Next we have to see what are the different factors that is affecting water absorption. So we can say we are having two different types of factors, plant factor as well as environmental factor. अगर हम लोग plant factor की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें आएंगी, that is its root system and its resistance of conducting system। किस तरीके से उसके conducting tissues काम कर रहे हैं उसी बेसिस पे उसका absorption होता है। अगर हम लोग environmental factor देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉइल एयर, ट्रांसपीरेशन, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल का पीएच, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वहाँ पे इम्पैक्ट करेंगी, असरअंदाज होंगी एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को इन डिटेल में देखनी है। सो लेट्स सी द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। इन शॉर्ट अगर हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करेंगे तो हियर वी आर हैविंग अवेलेबल सॉइल वाटर, वट एवर सॉइल इज़ प्रेजेंट इन वाटर इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। हम लोग देख चुके हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर होते हैं, जो ग्रेविटेशनल वाटर है, कैपिलरी वाटर है। ये तरह का जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स को मौजूद होता है, तो ये भी वहाँ पे एक फैक्टर है, उसको रिस्पॉन्सिबल करता है। नेक्स्ट इज़ द सॉइल एरेशन, किस तरह की सॉइल है, सॉइल की टाइप भी वहाँ पे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि उसके पास प्लेंटी अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं, उस पर भी एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉइल सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशंस मौजूद है वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन किस तरह का है वो डिपेंड करेगा। देन सॉइल टेम्परेचर, इट शुड बी बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। अगर इसके बियॉन्ड होगा या उससे लो होगा तो भी यह चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। देन द नेक्स्ट वन इज़ द रूट सिस्टम, दैट इज़ व्हाट टाइप ऑफ रूट एक्चुअली द प्लांट इज एग्जिस्टिंग। हेयरी एंड वेल डेवलप रूट सिस्टम अगर होगा तो ही इसमें जो है वो एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाता है। तो हम लोग जो है वो कुछ और फैक्टर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दैट इज अवेलेबल ऑफ सॉइल वाटर, एज आई सेड ड्राई सॉइल डिक्रीजेज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इट डिक्रीजेज इन सॉइल वाटर दैट रिड्यूसेज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो सॉइल शुड नॉट बी ड्राई एट ऑल। द नेक्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉइल, इट मीन्स दैट सॉइल इज मच मोर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल सैप। सो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका हाई होना चाहिए ऑफ सेल सैप फॉर द रूट एब्जॉर्प्शन। The next is the temperature of the rule, as I said it should be between 20 to 30 degrees Celsius only. Then the last one जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, that is the soil aeration। प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए। वाटर लॉक्ड अगर सॉइल रहेगी तो वहाँ पे भी रूट्स जो है वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट गुड एब्जॉर्प्शन, वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जो है वो वाटर लॉक्ड सॉइल भी हम लोग बोल सकते हैं कि पॉसिबल नहीं होता है, और इट मे बी एक्टिंग एज अ बैरियर इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो वी कैन समराइज दिस, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर यहाँ पे असेंशियल होना चाहिए। नेक्स्ट इज रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम एट सॉइल टेम्परेचर बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। देन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन सॉइल वाटर, दैट शुड रिड्यूस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसकी वजह से भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वहाँ पे सॉइल का ज़्यादा हो जाता है। देन पुअरली एरेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्सीजनेटेड सॉइल होना चाहिए, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे उसकी होनी चाहिए। देन इंक्रीज्ड ट्रांसपीरेशन एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द इरीगेटेड सॉइल। जैसे कि इरीगेटेड अगर सॉइल है तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो वहाँ पे भी जो है वो एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स जो है कम हो जाते हैं। इट मीन्स अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन हो रहा है, यू नो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है उस टाइप की सॉइल में तो वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन का जो फैक्टर है वो कम हो जाएगा। यानी उतना सॉइल एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, रूट्स उतना पानी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे जितना ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो इवापरेट हो जा रहा है। तो ये जब ट्रांसपीरेशन का रेट भी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में भी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इट मे बिकम लो, वी कैन से इन दिस कंडीशन। So here we will stop. I think that is enough for today. We will go very slowly
बिकॉज ये कंसेप्ट जो कि आज हम लोगों ने पढ़े हैं, इट इज़ आई थिंक लिटिल बिट नॉट मच, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर डाइजेस्ट, बट अगर आप लोग उसको अच्छे से रीड करोगे, टेक्स्ट बुक से कोरिलेट करोगे, तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी इफ़ेक्टिव फॉर यू पीपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो आप इसको प्लीज़ यू गो थ्रू द कंटेंट। आप होपफुली आपने अब तक टेक्स्ट बुक परचेस कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो यू कैन कोरिलेट द कंटेंट विद द PDF दैट वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू पीपल। तो प्लीज़ इसको एक मतलब आप पढ़ो, घर पे अच्छे से इसको कोरिलेट करने की कोशिश करो। और आज की वीडियो में जो कुछ भी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज़ पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको इसको बहुत अच्छे से रिलेट करना है, स्पेशली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, वो आप लोग ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे उसको और एक मतलब आपको देखना है, इन डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पे उसको देखा है। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट ऑल्सो, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम तो आई विल ब्रिंग वन न्यू कंसेप्ट फॉर यू पीपल। बहुत सारे ऐसे इसमें कंसेप्ट हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द प्लांट वाटर रिलेशन। So my humble request to all of you that please go through the content, try to correlate, take out your doubts, discuss it with me। कुछ भी अगर आपके doubts हैं तो आप मुझसे discuss कर सकते हो। Please don't feel shy to share your doubts with your teachers, not only for me but also for others also। आपके पास सबके नंबर हैं, आप उनसे जो है वो WhatsApp के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और प्लीज़ डोंट कीप योर डाउट्स विथ यू ओनली, try to solve it as early as possible, okay? So please go through the content and take care. So we will meet inshallah next time. So till that, take care. Assalamu alaikum.